السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وقال فی موضع آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ یکجا ہو کر ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے عرض کی ہے ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ دو تین بابے ہیں وہ ابھی تک نہیں بولے، ہم ان کی طرف سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ پہلے تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں، میرا مزاج نہیں ہے بار بار کہنے کا، ایسے ہی ڈانٹ ڈبٹ کرنے کا، ایسے ہی ہاتھ اٹھانے کے بدلے جنت دلانے کا وعدہ کرنے کا، تو ہم یوں کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ 30 منٹ میں آپ سے اجازت چاہ لوں گا۔ آدھا گھنٹہ تو اگر آپ حساب لگائیں تو میں قصور یعنی لاہور سے بھی آگے کا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور مجھے پھر آگے سفر کرنا ہے، تو اس سفر کی لاج ہی اتنی ہو سکتی ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے انشاءاللہ۔ جو بیدار بیٹھے ہیں سارے ابھی پتہ چل جاتا ہے، ذرا جوش کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جو بیدار نہیں بیٹھے۔ ٹھیک ہے وعدے کی وہ بات ہی نہیں کرتے آپ۔ اب جو بیدار بیٹھے ہیں ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ڈوئیں برابر ہیں۔ اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سے جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، میں نے ہر دور کی تاریخ کو کھنگالا محسن، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔
हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना, जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। अगर बेदार हैं तो एक और तोहफा दे, दूसरा बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की सद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत, बापर्दा समात करने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आपके इस इलाका बेट पीर हजार लगारी गोट है, क्या है, बस्ती लगारी में दोस्तों की दावत पर चंद एक मोहब्बत भरी बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। मालिक दो जहां से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज पर जलवागर मेरे बुजुर्ग, मेरे रहबर, बहुत से उलमा, शुआरा, नात खां, कुर्रा, भाई मालकी साहब, भाई रब नवाज, मेरे बुजुर्ग रब नवाज कोसर साहब और दूसरे उलमा मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेरे दिल के इंतहाई करीब मेरे बड़े भाई कारी मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, जिनकी बदौलत में आज आप हजरात के सामने हाजिर खिदमत हूँ। इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए अपना दर्द दिल आपकी गोश गुजार करने की इजाज़त चाहने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आज के लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनका जानना हर सुन्नी कौम में बसने वाले हर नौजवान के लिए ज़रूरी हैं, वो करने की जसारत करना चाहता हूँ। इसीलिए बार बार कहने का और बार बार बोलने का मौका मुयस्सर आया कि आज मैं ऐसी गुफ्तगू करना चाहता हूं। कोई दावा नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, नाउजुबिल्लाह तकब्बुर नहीं है। एक दर्द दिल है जिसकी सदाएं लगाते हुए हक नवाज जंगवी कब्र में उतर गए। एक ऐसा दर्द दिल है जिसके लिए इसारुल कासमी को ज़िबा होना पड़ा। ऐसा दर्द दिल है जिसके लिए मेरे वालिद के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। अल्लामा आजम तारक के जिस्म पर 52 गोलियों का हार पहनाया गया। अल्लामा अली शेर हैदरी को इल्म के पहाड़ होने के बावजूद ज़िबा कर दिया गया। 10,000 लाशें उठाए जा चुके। उन्हीं लाशों के रिश्तेदार, कोई बेवा हुआ, कोई यतीम हो गया, कोई बेआसरा ठहरा, किसी के अपने जुदा हुए, कोई दोस्तों से अलग कर दिए गए। ये सारा माजरा क्या है, ये वजह क्या है, ये कैसी जुस्तजू है, ये कैसी कोशिश है जिसके लिए आज से 27 साल, आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले या 28 साल पहले जवानियां लुटाने का यह सिलसिला शुरू हुआ। 12,000 लाशें उठाए जा चुके, लेकिन ये काम रुका नहीं। जवानियां देने वाले अभी भी मैदान में हैं, अभी भी अपनी जानों को हथेली पे रखे हुए हैं। वजह क्या है, वही वजह आपके सामने बताना चाहता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आज मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं दिफाए सहाबा है क्या, ये किस बाग की मूली का नाम है, ये किस उन्वान का नाम है जिस पर जवानियां लुटाई जा चुकी, लाखों कटने के लिए तैयार बैठे हैं। दिफा होता है किसी के लिए खड़ा हो जाना, किसी के लिए मैदान में निकल आना,
किसी को सिक्योर कर लेना, किसी को महफूज बना देना, किसी के दलाइल को सुनकर उसके हक में खड़ा हो जाना। मैं कुर्बान सहाबा की अजमत पर। ये सहाबा वो हैं जिनके दिफा की बात मैं करने वाला हूं। इनका दिफा सबसे पहले रब्बुल उला ने किया है। ऐसे नहीं साथ देंगे तो इंशाअल्लाह जज्बात में बुलंदी आएगी। जिसका दिफा सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। करने की वजह क्या बनी? क्योंकि मोहम्मद के सहाबा ने मोहम्मद का दिफा करके दिखाया है। चमकती हुई तलवारों के बावजूद भी मोहम्मद का दिफा करके बताया है। और तपती हुई रेत पर लेटकर भी मोहम्मद का दिफा करके बताया है। उबलती हुई देगों में गिरकर भी मोहम्मद का दिफा करके बताया है। उनको जिंदान में आबाद कर दिया, दिफा करते रहे। जेलों में डाल दिया गया, दिफा करते रहे। हाथों में हथकड़ियां आई, दिफा करते रहे। पैरों में बेड़ियां आई, दिफा मोहम्मद का करते रहे। घरों से निकाल दिया गया, वो मोहम्मद का दिफा करते रहे। रिश्ते नाते तोड़ दिए गए, वो मोहम्मद का दिफा करते रहे। वालिदैन ने बच्चों को दुदकार दिया, लेकिन ये मोहम्मद का दिफा करते रहे। इनके घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन ये मोहम्मद का दिफा करते रहे। मोहम्मद मक्का में आए, ये दिफा करते रहे। मोहम्मद मदीना में गए, ये दिफा करते रहे। मोहम्मद हसर में थे, ये दिफा करते रहे। मोहम्मद सफर में थे, ये दिफा करते रहे। बदर में देखा, ये दिफाई थे। ओहद में देखा, ये दिफाई थे। शखंदक में देखा, ये दिफाई थे। खैबर में देखा, ये दिफाई थे। तबूक में देखा, ये दिफाई थे। तबूक में देखा, ये दिफाई थे। मोता में देखा, ये दिफाई थे। हुनैन में देखा, ये दिफाई थे। जुलाशीरा में देखा, ये दिफाई थे। जुलाशीरा में देखा, ये दिफाई थे। हमराउल असद में देखा, ये दिफाई थे। नबी के चलने में देखा, ये दिफा करते रहे। नबी के मुस्कुराने में देखा, ये दिफा करते रहे। और ऐसा किया, जवानी लुटानी पड़ी, जवानी लुटाते चले गए। बच्चे देने पड़े, बच्चे देते चले गए। वालिदैन को बेसहारा करना पड़ा, वालिदैन को बेसहारा करते रहे। रब्बे काबा की कसम, नाम मोहम्मद का ले लिया, खुदा का अपना रब मान लिया। इसके बाद कुछ नजर नहीं आया। वालिदैन कुर्बान हुए, रिश्तेदारों को ज़िबा कर दिया गया। लेकिन कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने मोहम्मद का दामन छोड़ा हो, जो छोड़ के भाग गया हो, जिसने कदम हटा लिया हो, जो पीछे मुड़ गया हो। रब्बे काबा की कसम, जवानियां लुटाई जाती रही, ये कदम आगे बढ़ाते रहे। जिंदान में आबाद कर दिया गया, ये कदम आगे बढ़ाते रहे। इनको मारने की धमकियां मिली, ये कदम आगे बढ़ाते रहे। चूली पे लटका दिया गया, ये कदम आगे बढ़ाते रहे। रब्बे काबा की कसम, हर गुजरते दिन के साथ खुदाई की खुदाई का, मोहम्मद की मुस्तफाई का दिफा करते रहे। मोहम्मद के कलमे को पूरी दुनिया में पहुंचाते रहे। शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, दिफाए सहाबा, नारे तकबीर। और किस हालत में किया? बदर में उतरे, तलवारें पूरी नहीं, दिफा फिर भी किया। ओहद में गए, तादाद बहुत ज्यादा है, दिफा फिर भी किया। जंगे ओहद है, उम्मे अमारा नाम की खतून शहर से बाहर खड़ी है। औरत की बात कर रहा हूं, सिन्फ नाजिक कहा जाता है। इसके बारे में इस्लाम के कवानीन बदल चुके हैं। उम्मे अमारा खड़ी है, किसी बंदे ने आके कहा तेरा नाम उम्मे अमारा है? जी मुझे उम्मे अमारा कहते हैं। तुझे बताना चाहता हूं तेरा खामद शहीद हो गया। दूसरा आया, उसने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। तीसरा आया, उसने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। बंदे के यही 3-4 रिश्ते सबसे अहम हुआ करते हैं। वो उम्मे अमारा कहने लगी, अच्छा खामन चला गया, खैर है, भाई चला गया, खैर है, बेटा भी चला गया, खैर है। इन तीनों को कुर्बान करने के बाद मैं फिर भी पूछ रही हूं, बताओ तो सही मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है? बताओ तो सही मेरे मंठार का, मदनी मंठार का हाल कैसा है? वो कहने लगा मुझे समझ नहीं आई, खामद का बताया, भाई का बताया, बेटे का बताया, तुझे कोई असर नहीं हुआ? इतनी देर में क्या देखते हैं? आमना के दुर्रे यतीम, बदरु तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे ग़िना, सय्यिदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मा फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीनी अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमाम हरम, हुक्मरानी अरब, कायदे
इंसानियत, फखरे कौनैन, साहिब कौन वका, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फखरे अंबिया, ताजदार अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वादत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, ललगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जरूरत कायनात, इस्तिकामत कायनात, ताकत कायनात, मोहब्बत कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, हुस्न कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, मोहब्बत कायनात, रहमत कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आ गया। ये उम्मे हमारा है, खामन जा चुका, भाई जा चुका, बेटा कुर्बान हो चुका। जब आका के चेहरे पे नजर पड़ी तो रब्बे काबा की कसम, कहने वाला कहते हजरत उम्मे हमारा यूं जश्न मना रही है जैसे कोई दुनिया से गया ही नहीं। किसी ने सवाल कर लिया, बाप भाई चला गया, खामन चला गया, बेटा चला गया, तू फिर भी मोहम्मद को देखकर खुश हो रही है? तो वो कहने लगी, सारी कायनात भी चली जाए, अगर सारी कायनात भी जुदा हो जाए तो कोई गम नहीं, अगर मोहम्मद बच गए हैं, रब्बे काबा की कसम, उम्मे हमारा की सारी कायनात बच गई है, सारी कायनात बच गई है। मैंने कहा कारी तैयब साहब, ऐसा जमाने में नहीं देखा गया। हम किसी से लड़ें, मैं तादाद में 10 में हूं, मुकाबले में 15 आएगा तो मेरे साथ 9 बंदे खड़े होकर ये कहेंगे, यार 5 बंदियां दा होर इंतजाम करो, मुकाबला बनदा नहीं, एक एक बंदे नु एक एक मिल से ते वाला गल बन वैसी। लेकिन मैं कुर्बान, बदर में 313 है, मुकाबले में 1000 हैं। किसी एक ने भी ये नहीं कहा मोहम्मद एक के मुकाबले में 3 का मुकाबला बन रहा है, अभी और तादाद ले आते हैं, अभी और बंदों को बुला लेते हैं, अभी और सहाबियों को शामिल कर लेते हैं। रब्बे काबा की कसम, रोजे की हालत भी है, दोपहर की गर्मी भी है, मक्का का दिन भी है, और रोजे की हालत भी है, और गर्मी का मौसम भी है। मोहम्मद कहते जा रहे हैं और ये दिफाई अपनी जानों को लुटाते हुए मोहम्मद के नगमे सुनाते नजर आ रहे हैं। कभी दुनिया में देखा हो, ओहद का मार्का है, 700 मुसलमानों का लश्कर है, मुकाबले में 3000 हैं, 3000। किसी एक सहाबी ने भी भागने का नहीं कहा, कोई एक भी छोड़ के जाने को तैयार नहीं। 313 के मुकाबले में 700 वही लड़ सकता है जो मोहम्मद का दिफाई हो। कोई ऐसा दिखाया जाए कि एक जंग में काफिरों की तादाद है 40,000, कितनी 40,000 की तादाद है, और मोहम्मद का लश्कर है सिर्फ 12,000। मोहम्मद ने फरमाया लड़ना है, सहाबा ने कहा हर हालत में लड़ना है। मोहम्मद ने कहा जवानी जाएगी, अबू बकर ने कहा चली जाए, उमर ने कहा चली जाए, उस्मान ने कहा चली जाए, हस अली ने कहा चली जाए, तलहा ने कहा चली जाए, जुबैर ने कहा चली जाए, साद और सईद ने कहा चली जाए, हुसैन ने कहा चली जाए, अमीर माविया ने कहा चली जाए। दुनिया ने वो मंजर देखा कि 40,000 के मुकाबले में ये 12,000 लड़ने को आए हैं। इनके लबों पर भूख है, इनके लबों पर प्यास है, लेकिन वो लब खामोश नहीं है, अल्लाह की तौहीद के नारे भी लगा रहे हैं, मोहम्मद की रिसालत के नगमे भी गा रहे हैं। और उससे आगे बढ़ के हद हो गई, रोमियों का लश्कर है 2.5 लाख, कितना बुलंद आवाज से 2.5 लाख। इन 2.5 लाख के मुकाबले में मोहम्मद का लश्कर है सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000। मैंने कहा अगर वो सच्चे ना होते तो 30,000 देख के भाग जाते कि कितने गुना ज्यादा से लड़ना है, कितने गुना ज्यादा के मुकाबला करना है। रब्बे काबा की कसम, शाह रूम के साथ लश्कर की बात आई तो मोहम्मद के सहाबा ने दिफा करके दिखाया। नबी के कलमे को बचाने की बात आई, सहाबा ने दिफा करके दिखाया। नमाज बचाने की बारी आई, दिफा करके दिखाया। रोजे को बचाने की बारी आई, दिफा करके दिखाया। नबी के जिस्म के, नबी के अज़ा को बचाने की बात आई, दिफा करके बताया। अल्लाह के नबी के हुस्न को बताने की बारी आई, दिफा करके बताया। नबी के साथ चल के मर के अपनी जानों को लुटा के कदमों में उतरने की बारी आई, दिफा करके बताया। नबी
की इज्जत के पहरे की बात आई तो दफा करके बताया, नबी के लिए लड़ने की बात आई दिफा करके बताया, नबी का कुरान पढ़ने की बात आई दिफा करके बताया, माल लुटाने की बारी आई सारा घर लुटा के दिफा करके बताया, आधा माल लाके दिफा करके बताया, 1800 गल्ले से लदे हो मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान करके दिफा करके बताया। अली अल मुर्तजा शेरे खुदा बनकर दिखा रहे हैं, दिफा करके दिखा रहे हैं। और शायर भी कह रहा है, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ले लिया मुझे आवाज नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। और ये मोहम्मद के सहाबा हैं जो चुने हुए हैं, जो मेरे नबी ने एक हदीस बयान फरमाई, एक नुक्ता एक वालिद की तरफ से अता हुआ। मेरे नबी का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी। क्या फरमान है? खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मैंने आका दो जहां को मुखातिब करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपका सिर्फ जमाना ही बेहतरीन नहीं, हमने तखय्युलात में आपके चेहरे को देखा वो भी बेहतरीन, आपकी खुशबू को सूंघने की कोशिश की वो भी बेहतरीन, आपकी आंखों को देखा वो भी बेहतरीन, आपके नाक को देखा वो भी बेहतरीन, आपके रुखसारों को देखा वो भी बेहतरीन, आपके जज्बात को देखा वो भी बेहतरीन। ये तो जिस्म के आज़ा है, आपके पूरे वजूद को देखा वो भी बेहतरीन। आप मक्का में गए, मक्का भी बेहतरीन, आप मदीना में गए, मदीना भी बेहतरीन, आप सहाबा के गिर्द जमा हुए, आप भी बेहतरीन, आपके सारे सहाबा भी बेहतरीन। अल्लाह के नबी का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी, कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। जब ये सवाल मैंने सुना तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह के लाडले पैगंबर मक्का में पैदा हुए, मदीना तक पहुंचे, जंगों में गए, उसके अलावा कायनात में आका कभी कहीं नहीं गए, तो फिर क्या मतलब हुआ कि सिर्फ मक्का का जमाना बेहतरीन, सिर्फ मदीना का जमाना बेहतरीन, सिर्फ जंगों का जमाना बेहतरीन? ये बात मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि मेरे अकाबिर मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमा दिया था कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेकर कुछ रोशनी बस में कोनों मकान को सजाया गया। इसका मतलब है कि मोहम्मद की रोशनी से सबको रोशनी मिली, मोहम्मद की अताओं से सबको अताएं मिली, मोहम्मद की रहमत से सबको रहमतें मिली, मोहम्मद की नेमत से सबको नेमतें मिली, मोहम्मद के हुस्न से सबको हुस्न मिला, जमाल मिला, कमाल मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, अजमत मिली, रिफ्फत मिली, बुलंदी मिली, अफकार मिले, अशआर मिले, अफकार मिले, जलगार मिले, गुफ्तार मिले, ललकार मिले, जिहाद मिला, मुजाहिदा मिला, तिजारत मिली, हिफज मिला, तफसील मिली, तहदीस मिली, हदीस मिले, नबी के अफकार पर चलकर कायनात को जर्रा जर्रा मिल गया। तो फिर पता चला कि मेरे आका की ये बात खैरुल कुरूनी करनी इस अंदाज से नहीं समझ आएगी। मैंने अपने वालिद मुर्रख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी से पूछा कि मुझे समझ नहीं आई, आका तो कहते हैं खैर का जमाना मेरा जमाना, लेकिन नबी का जमाना तो सिर्फ मक्का का जमाना, सिर्फ मदीना का जमाना, बद्र ओहद खंदक खैबर तबूक यरमूक मौता ज़ातुर रिकाजुल अशीरा पीरे मऊना हुनैन का जमाना है। तो मेरे वालिद ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्हीं अल्फाज को देखोगे तुम्हें जवाब मिलेगा। मैंने कहा कैसे मिलेगा? उन्होंने फरमाया नबी का फरमान ये है खैरुल कुरूनी करनी, कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मैंने कहा नहीं समझा। फरमाने लगे एक लफ्ज को लीजिए करनी, जिसका मतलब है मेरा जमाना। नबी कह रहे हैं सबसे बेहतरीन मेरा जमाना। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई। वो फरमाने लगे, शहीद फरमाने लगे कि जरा देखो तो सही, इस करनी का मतलब है मेरा जमाना। इस करनी में जो काफ है ये सिद्दीक अकबर की है, इसमें जो रा है ये उमर फारूक की है, इसमें जो नून है ये अली हजरत उस्मान की है, इसमें जो या है अली अल मुर्तजा शेरे खुदा की है। नबी कहना चाहते हैं खैर का जमाना मेरा जमाना, मेरे सिद्दीक का जमाना, मेरे फारूक का जमाना, मेरे उस्मान का जमाना, मेरे अली का जमाना, मेरे तलहा का जमाना, मेरे जुबैर का जमाना। मैंने कहा फिर ये कहने दीजिए नबी कहते होंगे खैर का जमाना जन्नत के बादशाह हुसैन इब्ने अली का जमाना, खैर का जमाना पूरी कायनात के बादशाह हजरत अमीर माविया का जमाना। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, सदाकत सिद्दीक अकबर,
नारा जरा जोरदार। सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, सखावत उस्मान गनी, शहादत अली अल मुर्तजा, सियासत अमीर मुआविया, सियासत अमीर मुआविया। नारा तकबीर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मैं उन सहाबा का दिफा क्यों ना करूं। माँ अपने चंद महीने के बच्चे को लाई, आकर महबूब से कहने लगी आपके कदमों पे कुर्बान करने के लिए लाई हूं। आका ने पूछा मैं इसका क्या करूंगा? वो औरत रोकर कहने लगी और तो कुछ है नहीं, आप पर अगर कोई तलवार का वार आएगा ढाल बनाने के लिए मैं इन चंद माँ के बच्चे को आगे कर दीजिएगा। ये औरत क्यों ना अजमतों वाली बन जाए। हाँ, जंग ओहद ही है। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? इल्म में इजाफा हो रहा है तो अपना इजहार चेहरे से सुभान अल्लाह से करना चाहिए। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। वो लंडी कोतल वाले खामोश बैठे हैं, जरा ये भी बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जंग ओहद है। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बुलाया और बुला के कहा कि जाओ साद को ढूंढ के लाओ, मेरे साथ को ढूंढ के लाओ। जब वो जाने लगे तो आका ने फरमाया हाँ, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो सबसे पहले उसे मोहम्मद का सलाम कहना, सबसे पहले उसे मोहम्मद का सलाम कहना, फिर मेरे पास ले आना। वो सहाबी गए, उन्होंने तंदुरुस्त लोगों में देखा, साद नजर नहीं आए। उन्होंने शोहदा में देखा, साद नजर नहीं आए। उन्होंने कैदियों की लिस्ट देखी, साद नजर नहीं आए। उन्होंने जख्मियों में देखा कि लंबी कितार है, कितार दर कतार है, सहाबा एक दूसरे के ऊपर हैं, जख्मी हैं। कहते हैं मैंने 2-4 सहाबा जख्मियों को उठा के दूसरी तरफ रखा तो क्या देखा, नीचे साद जख्मी हालत में हैं। मैंने उसे जाकर कहा है साद तेरी अजमतें बढ़ गई। मैंने कहा वो कहने लगे कैसे बढ़ गई? वो सहाबी कहते हैं मैंने बताया कि तुझ अकेले को मोहम्मद ने सलाम भेजा है और मोहम्मद तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद अपनी जगह से उठने लगे, गिर गए, फिर उठने लगे, फिर गिर गए, तीसरी मर्तबा फिर उठने लगे, फिर गिर गए। हाय दुनिया के लोगों, हम तो लब हिलाते हैं कि फलां सहाबी के बारे में जरा होनी चाहिए, फलां सहाबी के बारे में पूछ गुछ होनी चाहिए। रब्बे काबा की कसम मंजर तो देखो ना, जान निकल रही है, मोहम्मद का सलाम आ चुका है। हजरत साद एक मर्तबा उठते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं और आखिर में सहाबी से कहने लगे कि मेरे महबूब से कहना कि आज साद को आपने सलाम भेजकर कलेजे में ठंडक डाल दी। मैं पंजाबी में रात एक जगह कह रहा था कि हजरत साद यूं कहते होंगे सहाबी तू मोहम्मद दा सलाम दे के ना मेरे दिल नु ठंड पा छड़ी। मोहम्मद से कहना मैं आने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं। उस सहाबी ने कहा किसके लिए? आका के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए? फरमाने लगे नहीं, मेरी कौम के लिए। वो पैगाम क्या है? साद ने कहा मेरी कौम अंसारी से कह देना कि आपका सरदार साद आज मोहम्मद के कदमों पे जान दे के जा रहा है, लेकिन उसकी जुबान के आखिरी अल्फाज ये हैं कि मेरे बाद कभी भी मोहम्मद को मायूस ना करना, मोहम्मद की इज्जत को बचाना, मोहम्मद की अजमत को बचाना, मोहम्मद के लिए जिहाद करना, मोहम्मद के लिए हर हद से गुजर जाना, मोहम्मद के लिए अफकार का यलगार और ललकार के साथ मोहम्मद का साथ देना। ये कहते हुए हजरत साद की जान निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उस सहाबी ने आकर आका को सारा किस्सा सुनाया, आका की आंखों में आंसू आए। आका फरमाने लगे ए साद तेरी अजमतों को सलाम, दुनिया से जाते हुए तुझे बीवी की परवाह नहीं रही, अपने बच्चों की परवाह नहीं रही। आखिरी वक्त में भी अगर कोई पैगाम था तो कौम के लिए था, अगर किसी वजह से था तो मोहम्मद मुस्तफा की वजह से था। चंद दिन गुजरे, वही सहाबी जो पैगाम लेके गए थे वो कहते हैं चंद दिन गुजरे, मैंने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके सीने पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। मैंने कहा सिद्दीक ये आपकी नवासी है या पोती है या आपके अब्दुल रहमान की बेटी है, मोहम्मद बिन अबू बकर की बेटी है? हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे ये मेरे भाई साद की बेटी है, जो जाते हुए पैगाम कौम को तो दे के गया,
जो जाते हुए पैगाम मोहम्मद को तो दे के गया, लेकिन उसे जाते हुए इस छोटी सी बच्ची की परवाह न हुई, उसे अपनी बीवी की बेदबी की परवाह नहीं हुई। उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज भी नबी के लिए थे, मोहम्मद की अजमत के बयान करने के लिए थे। मैंने कहा एक वो दिफाई थे। इधर हम भी देखते हैं, जब मेरे वालिद दुनिया से गए मैं 7 साल का था और मेरे चचा मेरे वालिद शहीद के पास थे जब वो बम धमाके में शहीद हुए। मेरे वालिद उठे, रिवायात में पता चलता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं था क्योंकि बम धमाका हुआ था। लाहौर सेशन कोर्ट था। मैंने कहा रमजान का महीना था, रोजे की हालत थी, जरा कड़ियां मिलाओ तो सही, जरा सहाबा के करीब लाओ तो सही, तुम्हें पता चलेगा। बच्चे वहां भी यतीम हुए, बच्चे यहां भी यतीम हुए। मेरे वालिद शहीद उठे, जख्मी हैं, उठकर आसमान की तरफ देखा और देखकर साथ मेरे चचा से पूछा, यार मैनू छड़ ए दस आजम तारक दा की हाल है? उन्होंने कहा भाईजान वो सामने हैं। जिंदा है ना? जी जिंदा है। यही अल्फाज आखिरी वक्त में मेरे वालिद मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझे ये फख्र है। रिवायात में मेरे चचा कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, उसके बाद आसमान की तरफ देखकर कहा, रब्बा मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मैं अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए जान दे रहा हूँ। और कलमा पढ़ा और दुनिया से चले गए। मैं कभी कभी चचा से पूछता हूँ, चचा जान कोई एक लफ्ज भी मेरे बारे में कहा हो, कोई एक बात ही मेरे बारे में पूछी हो? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तेरे वालिद ने जाते हुए भी सहाबा की सुन्नत को जिंदा कर दिया। तेरे वालिद ने जाते हुए भी सहाबा की अजमतों के फेरेरे लहराए हैं। मैंने कहा फिर पता चल गया कि उधर सहाबा की जमात है जिनके सामने मोहम्मद मुस्तफा हैं, इधर सिपाहे सहाबा की जमात है जिनके सामने अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान अली हैं, अली मुर्तजा हैं। उधर नबी के लिए वो जाने लुटा रहे हैं, इधर सहाबा के लिए ये जाने लुटा रहे हैं। दिफा में उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, दिफा में कसर इन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी। उधर भी तख्तेदार पर लटकाए गए वो मुस्कुरा रहे थे, इधर भी तख्तेदार पर लटकाए गए ये भी मुस्कुरा रहे थे। उधर भी अनगिनत जवानियां लुटाई गई, यहाँ भी लामादूद जवानियां लुटाई जा रही हैं। उधर नामे मोहम्मद था, इधर नामे सहाबा है। उधर भी जन्नत थी, इधर भी जन्नत है। उधर भी जन्नत की खुशबू थी, रब्बे काबा की कसम इधर भी जन्नत की खुशबू है। आपको तोहफा दे दूं, एक जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान। मेरे सहाबा के पे मरने की वजह क्या है, सहाबा के लिए कटने की वजह क्या है? आज आप देखें मेरे वालिद को शहीद हुए 26 साल हो गए। 26 साल, 26 साल के बाद भी मुझे किसी ने एक कदम भी पीछे नहीं देखा होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं पीछे नहीं हटा तो अबू बकर कैसे हट जाता? अगर मैं नहीं हटा तो उमर कैसे हट जाते, उस्मान कैसे हट जाते, अली कैसे हट जाते, सहाबा कैसे हट जाते, अहले बैत कैसे हट जाते? रब्बे काबा की कसम उन्हें तो इश्क था, उन्हें तो प्यार था, उन्हें तो इल्फत थी, उन्हें तो अकीदत थी। उनका सब कुछ मोहम्मद है, उनका नाता मोहम्मद है, उनका रिश्ता मोहम्मद है, उनका आना मोहम्मद है, उनका जाना मोहम्मद है, उनका मुस्कुराना मोहम्मद है। रब्बे काबा की कसम बड़ा जुमला कहने लगा हूं, उनकी दुनिया में जन्नत ही मोहम्मद मुस्तफा थे। थे या नहीं थे? रमजान का महीना अभी गुजरा है। हमारी मस्जिदों में ऐलान करने के लिए कोई ना कोई बाबा जी होते हैं, मुअज्जिन होता है कि जी सहरी का वक्त खत्म होने में 10 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए, वक्त पूरा हो चुका, अफ्तारी का वक्त हो चुका। होता है या नहीं होता? आप में से कोई एक भी है जिसने इस रमजान में एक मर्तबा ही ऐलान किया हो तो वो हाथ ऊपर करे। वो मेरे भाई 2, 3, 4 लोगों ने, 5, 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। आपको मुबारक हो, आप बिलाल हबशी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। आका के जमाने में हजरत बिलाल की जिम्मेदारी थी। बिलाल हबशी घर से निकले, सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। घर से निकले, किसी टेले पर, किसी छत पे, किसी पत्थर पे, किसी दरख्त पे चढ़ के वो ऐलान करते कि सहरी का वक्त हो गया, अफ्तारी का वक्त हो गया, खत्म हो गया। गली से गुजरे तो उन्हें किसी घर से बातों की आवाज आई। बिलाल ने कदम आहिस्ता किया तो उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि ये आवाज मोहम्मद की थी।
दिल में सोचने लगे कि आज दिन कैसा होगा कि आज आगाज में ही मोहम्मद के चेहरे का दीदार हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा के अंदर से हजरत अली उल मुर्तजा की आवाज आई, कौन है? मंदक्कल बाबा के दरवाजे पर कौन है? हजरत बिलाल हबशी ने अपना तारुफ करवाया। दरवाजा खुल गया। अंदर जाके देखा कि मिकदाद इब्न असवद मौजूद हैं, अली उल मुर्तजा मौजूद हैं, आका दो जहां मौजूद हैं, 3 और सहाबा मौजूद हैं, यानी 6 अफराद मौजूद हैं। हजरत बिलाल हबशी आका के चेहरे को देखते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, आका आपके चेहरे को देख लिया, मेरा रोजा अजमतों वाला हो गया। आका ने पूछा किधर आए हो? किधर आए हो? मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है, किधर आए हो? आका सहरी का वक्त खत्म हो गया, ऐलान करने आया हूं। आका खाना खा रहे हैं। बिलाल ने कहा आका खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। आका खाते रहे। एक दफा कहा ना, आका खाते रहे। बिलाल ने 2-3 मिनट में सबका हाल चाल पूछा, फिर जाने लगे तो कहने लगे आका मैं ऐलान करने जा रहा हूं, आप बस कीजिए। सहरी का खाते रहे। बिलाल गए, टीले पे चढ़े, ऐलान करने लगे। दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इधर ऐलान कर दूं उधर मोहम्मद खाना ना छोड़े तो मेरी बात कहां रह जाएगी। जरा जाके देखूं तो सही महबूब क्या कर रहे हैं। वहां से उतरे, दोबारा आ गए, दरवाजा बजाया, अंदर देखा आका अभी भी खा रहे हैं। बिलाल को बड़ी हैरत हुई, आका ये क्या बात हुई? मैंने 1 मर्तबा कहा आप खाते रहे, दूसरी मर्तबा कहा खाते रहे, मैं चला भी गया, मैं फिर आ गया, आप खा रहे हैं। आका अभी भी खा रहे हैं। बिलाल ने कहा आका वल्लाह सहरी का टाइम खत्म हो गया। क्या कहा? ऐसे नहीं, सारे मिलकर वल्लाह सहरी का टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा ये वल्लाह क्या है? मेरे अकाबिर ने बताया, बिलाल कह रहे हैं अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया। बिलाल ने कसम उठाई, आका दो जहां के हाथों में नवाला है, यूं लबों के करीब है। आका दो जहां ने वहीं से छोड़ दिया। आसमान को देख रहे हैं और मुस्कुराने लगे। बिलाल को बड़ा इज़्तिराब हुआ, हैरत हुई, आका ये एक लुकमा छोड़ दिया, इसके खाने से रोजा नहीं टूटेगा, ये जाया हो जाएगा, खा लीजिए। आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं बिलाल आज नहीं खाऊंगा। बिलाल पूछते हैं आका मुझे बताएं खाना ये नवाला क्यों नहीं खाएंगे? पहले क्यों खाना नहीं छोड़ा, अब अचानक क्यों छोड़ा और मुस्कुरा क्यों रही हैं? मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। आका दो जहां ने बिलाल के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे बिलाल जब तू पहली दफा आया था सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ था, मैं इसी वजह से खाता रहा। तूने फिर कहा वक्त अभी भी खत्म नहीं हुआ था, मैं फिर खाता रहा। तू चला गया, तू वापस आया, फिर भी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ था। घड़ियां नहीं थी ना, उन चीजों को, चांद और सितारों को देखकर इल्म हासिल किया जाता था। फरमाते हैं कि तू वापिस आया, अभी भी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ था। जब तूने कसम उठाई तब भी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जब तूने कसम उठाई मैंने आसमान जन्नत की तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कह रहे हैं ऐ फरिश्तों उठो और जल्दी जाके वक्त को कहो अपनी औकात में रहें, मेरे बिलाल ने अल्लाह की कसम खा ली है। वक़्त से कहो सिमट जाए, औकात से कहो सिमट जाए, लम्हात से कहो सिमट जाए, लहज़ों से कहो सिमट जाए। आका के बिलाल ने पूछा आका कहना क्या चाहते हैं? आका ने फरमाया बिलाल और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुझे सोच रहा हूँ कि जब तू नहीं आया था तब तू क्या था, अब तू आ चुका है, अब क्या है? मैं जन्नत में देख रहा हूँ तेरे ही नारे लगाए जा रहे हैं, तेरे ही झंडे लगाए जा रहे हैं। आका कैसे? एक लुकमा भी नहीं खाया। आका फरमाने लगे बिलाल जब तूने कसम खाई ना, मैं लुकमा खाता तो शायद मेरे रोजे और सहरी पर सवाल उठ जाते, क्योंकि मैंने औकात को बड़ी जल्दी में बदलते हुए देखा और अल्लाह फरिश्तों से कह रहे थे फरिश्तों जल्दी करो कहीं मेरे बिलाल की कसम जो है गलत साबित ना हो जाए। मेरे रब को गवारा ही नहीं कि मेरे सहाबा कसम उठाएं और वो गलत साबित हो जाए, सहाबा कोई बात करें वो गलत साबित हो जाए। मैंने कहा फिर पता चला अबचे का काला बिलाल है जिसके बारे में शायर कहता है मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, जो भी फैसला करें ना सवाल करते हैं। काला जो कदमों में आए उसे बा जमाल करते हैं, अदना जो कदमों में आए उसे बा कमाल करते हैं। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, ये छोटे मोटे काम तो खादिम बिलाल करते हैं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए मेरे बिलाल की लाज मेरे रब ने रखी।
अगर रब ने रख के कानून ही बदल डाला तो हक नवाज क्यों ना कदमों पे कुर्बान होता, इरशादुल कासमी क्यों ना ज़िबा हो जाता, ज़ियाउर रहमान फरूकी के टुकड़े क्यों ना हो जाते, आज़म तारक और अली शेर हैदरी मुस्कुराते हुए जवानियां क्यों ना लौटा जाते, शमसुर रहमान क्यों ना मुस्कुराता जाता, हजरत अकबर सईद फरूकी, डॉक्टर फयाज और डॉक्टर फयाज और मुनीर माविया, शमसुर रहमान माविया और हमारे 12,000 कारकुन क्यों ना बिलाल के कदमों पे कुर्बान होते, क्योंकि बिलाल की कसमों की लाज खुदा रखता है तो सहाबा की लाज, सहाबा के ये मोहब्बत करने वाले रखते हुए करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, गोट गोट, शहर शहर सहाबा की इज्जत के पहरे लगाते रहेंगे, सहाबा के झंडे लगाते रहेंगे, अलम सहराबा का लहराते रहेंगे और बताएंगे अगर वो मोहम्मद के दिफाई हैं हम सहाबा के दिफाई हैं, अगर मोहम्मद के वो नौकर हैं हम सहाबा के नौकर हैं, सहाबा नबी के गुलाम हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं, सहाबा ने नबी के लिए सब कुछ लुटा दिया है, हम भी लुटा के छोड़ेंगे, कुछ नहीं बचाया है हम भी नहीं बचाएंगे, दुनिया को बताएंगे जब तक जिएंगे सहाबा सहाबा कहते रहेंगे, सहाबा सहाबा तराना होगा, सहाबा सहाबा फसाना होगा, सहाबा सहाबा हमारी रिफतें होंगी, हमारी बुलंदियां होंगी, जिस्म में खून का एक एक कतरा जब तक रहेगा, रब्बे काबा की कसम, तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा बकीसा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिजा आलिमा फासिला सालिहा जाहिदा अम्मा आयशा का पहरा देते रहेंगे, कुफर के साथ लड़ना पड़ा लड़ते रहेंगे, मैदान में निकलना पड़ा निकलते रहेंगे, गोलियां खानी पड़ी खाते रहेंगे, बम्बों के वाले होना पड़ा आते रहेंगे, हमारे जिस्म का एक एक कचरा भी सहाबा की अजमत भी सुनाता रहेगा, आले बैत के तराने भी गाता रहेगा, साथ चलेंगे पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।